Across to Anila Singh of the BJP, who's also joining us on the broadcast. Good afternoon. Thank you for speaking with us here on Times Now. Your first reaction to the comment by Mallikarjun Kharge, the Congress president, on UP CM Yogi Adityanath. He has called the UP Chief Minister Atankvadi this time after making a remark on his attire, the Gerua dress that he is seen in. My Ram to all, and I am not at all surprised. A political party which has coined the term Bhagwa Atankvad, Bhagwa terrorism, the only country where Hindus are the majority population, there one political party coins them as a terrorist. Whole of the world is pointing towards one particular religious community for terrorism. In Bharat, one particular political party, they point out saffron as a terrorism because perhaps they do not understand the meaning of saffron. That is the reason, because a political party which doesn't recognizes Bharat as a nation, so they do not have nationality in them. That is why they keep on insulting Bhagwa. Bhagwa is the color which is in a flag also. So it symbolizes not only the nationality but the stability. It is political symbolism. It is the symbol of purity, sanctity, sacrifice, light and salvation. This is what Yogi Adityanath ji. What is the position of Kharge Saab? We have seen he is nothing more than a chaprasi of this particular family. When Priyanka Vadra was filing her nomination, he was standing out, just peeping in like a chaprasi. All right. Anila Singh, thank you for the moment for joining us and sharing with us your perspective on the statement made by Mallikarjun Kharge, the Congress president. We have with us Mahant Raju Das, who's here also now joining us on the broadcast. Thank you हमसे बात करने के लिए. आप किस तरह से देखते हैं ये जो नई टिप्पणी आई है यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के लिए, आतंकवादी कहा गया है मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस प्रेसिडेंट द्वारा उनको? देखिए, पहले तो मैं मल्लिकार्जुन खड़गे का इस बयान का पुरजोर विरोध करता हूँ, निंदा करता हूँ और मैं मांग करता हूँ भारत के सभी साधु समाज के लोगों से कि इस कांग्रेस की जो ये मानसिकता है, कांग्रेस का जो ये विचार है, इस विचार का पुरजोर विरोध करें और निंदा करें, क्योंकि इस प्रकार से बयान मल्लिकार्जुन खड़गे का देना दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। और जिस प्रकार से कांग्रेस में दिग्विजय सिंह जी ने भी भगवा आतंकवाद को मढ़ा था कि भगवा आतंकवाद के नाम पर उन्होंने कहा था, इसी प्रकार से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा है दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, आतंकवादी कहा है। ये कितने भगवा वस्त्र पहनकर योगी आदित्यनाथ जी के बारे में इस प्रकार का टिप्पणी करना, अरे भाई वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं साधु के अलावा, और इस प्रकार से टिप्पणी करना कहीं से उचित नहीं है। मैं मांग करता हूँ कांग्रेस के राहुल गांधी जी से कि उसको पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाएं या तो कह दें कि कांग्रेस ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है, संतों का अपमान हम ऐसे करते रहेंगे। All right. Thank you very much for speaking with us here on Times Now. So Mahant Raju Das there saying that he demands Rahul Gandhi should remove him as the party president. We'll see how the Congress party officially will respond to this comment made by Mallikarjun Kharge, the president of the Congress party. Let's once again now listen into what exactly he had to say about UP Chief Minister Yogi Adityanath this time. आप फिर वही बात करते हैं। वो हमारे एक साधु महाराज है, क्या नाम उनका, योगी आदित्यनाथ, वो तो ऊपर से साधुओं का वेश पहनते हैं। अरे मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे? मैंने उसी लिए परसों मुंबई में मीटिंग हुई थी तो कहा भाई एक काम करो, तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है, बाटो काटो में क्यों डर है? हाँ, जो लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते।
So you heard, viewers, this is what Mallikarjun Kharge, the Congress president, had to say, and launching a scathing attack on the Congress party. The BJP has alleged that the Congress is Hindu Virodhi, and the comments are proof of their hatred for Sanatan. Listen in. स्पष्ट कर दिया है कि उनको हर वो व्यक्ति आतंकवादी दिखता है जो सैफरन पहनता है। खड़गे जी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनको सैफरन टेरर जैसे शब्दों को वो आगे लेके जाएंगे। ये वही कांग्रेस पार्टी जिनका शासन जब हुआ था तो उन्होंने हिंदू टेरर, सैफरन टेरर जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। आज खड़गे जी ने स्पष्ट कर दिया कि अगर उनकी सरकार आती है तो जैसे यूपीए की सरकार थी तो वो कम्युनल वायलेंस बिल लेके आएंगे। अगर उनकी सरकार आती है तो वो हिंदुओं को आतंकवादी कहेंगे। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं को और गेरुआ पहनने वालों को आतंकवादी समझती है। इसीलिए देश का सनातन समाज ने 2014, 19 और 24 में प्रो टेरर कांग्रेस पार्टी को जवाब दिया था और महाराष्ट्र के अंदर भी प्रो टेरर कांग्रेस पार्टी को जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी की सोच, राहुल गांधी की सोच, मल्लिकार्जुन खड़गे की सोच हिंदू आतंकवाद, सनातन आतंकवाद की है। इसको ये सनातनी भारत मुंहतोड़ जवाब दिया था, है और रहेगा। Let's now go across to Acharya Pramod Krishnan, who's also now joining us on the broadcast. Good afternoon. हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। आप किस तरह से देखते हैं जो ये ताज़ा बयान आया है मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस प्रेसिडेंट की तरफ से यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के लिए एक तरह से आतंकवादी, टेररिस्ट से उनकी तुलना कर रहे हैं? देखिए हिना, ये राजनीतिक बयानबाजी का विषय नहीं है, ये हमारी धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, ये सनातन से जुड़ा हुआ विषय है, ये श्रद्धा से जुड़ा हुआ विषय है। भारत ऋषि प्रधान देश है। भारत के ऋषि मुनि, त्यागी, तपस्वियों ने, साधु महात्माओं ने, संत महापुरुषों ने इस राष्ट्र के निर्माण में और इस राष्ट्र के लिए अपने प्राणों तक की आहुतियां दी हैं। और योगी आदित्यनाथ किसी भी पार्टी के नेता हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो एक साधु हैं, वो एक संत हैं, वो सन्यासी हैं, वो गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं। अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति उनके ऊपर निजी टिप्पणी करता है तो मैं समझता हूं कि ये घोर निंदनीय है। और जहां तक मल्लिकार्जुन खड़गे जी का सवाल है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी इतने वरिष्ठ नेता हैं, इतने बुजुर्ग नेता हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी नाम से तो लगता है कि वो हिंदू हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, ज्योतिर्लिंग के नाम पर उनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन उनके कामों से नहीं लगता कि वो हिंदू हैं। तो पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को ये बताना चाहिए कि वो हिंदू हैं या नहीं है। अगर वो हिंदू हैं तो ये उनका अपराध बहुत बड़ा है। अगर वो गैर हिंदू हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी एक नेता नहीं है सिर्फ भाजपा के नेता होते अगर वो, तो मैं बिल्कुल उनके पक्ष में नहीं आता। मगर एक सन्यासी का अपमान, एक साधु का अपमान भारत में नहीं होना चाहिए। अगर भारत में साधुओं का अपमान होगा, सनातन का अपमान होगा, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन पता नहीं कांग्रेस को आजकल क्या हो गया है, जब देखो सनातन को गरियाते रहते हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं जब से ये एक नारा कह लीजिए बटेंगे तो कटेंगे जो है शुरू किया गया है, ये जो कॉल फॉर यूनिटी कहा जा रहा है, जब से इसकी बात शुरू हुई है, इस तरह के अटैक्स जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से खास करके योगी आदित्यनाथ के लिए, यूपी चीफ मिनिस्टर के लिए लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और साथ ही आप क्या मांग कर रहे हैं राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से, अब क्योंकि उन्हीं के पार्टी के प्रेसिडेंट ने इस तरह की बात कही है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं हिना कि ये बयान घोर निंदनीय है। दूसरी बात, ये हमारी आस्था पे चोट है, क्योंकि भगवा जो है, साधु संतों का जो चोले का रंग है, वो हमारी श्रद्धा से जुड़ा विषय है। दो बातें क्लियर हो गई। तीसरी बात है, कांग्रेस पार्टी को एक शौक लग गया है, कांग्रेस पार्टी की एक आदत बन गई है। उन्हें लगता है कि जब हिंदू इकट्ठा रहेगा तब तक उनकी सत्ता नहीं आएगी। ये मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। इसलिए वो ये किसी ना किसी बहाने से हिंदुओं को डिवाइड करना चाहते हैं। कभी वो जाति के नाम पे बांटना चाहते हैं, कभी वो भाषा के नाम पे बांटना चाहते हैं, कभी अगड़े पिछड़े के नाम पे बांटना चाहते हैं, कभी वो रंग के नाम पे बांटना चाहते हैं, कभी वो क्षेत्र के नाम पे बांटना चाहते हैं, उत्तर दक्षिण के नाम पे बांटना चाहते हैं, पूर्व पश्चिम के नाम पे बांटना चाहते हैं। अंततोगत्वा कांग्रेस पार्टी जो इस समय की कांग्रेस है, राहुल गांधी की कांग्रेस है, वो हिंदुत्व को बांटना चाहती है। उनको लगता है हिंदुत्व में डिवीजन हो जाएगा तो तुम्हें सत्ता मिल जाएगी। लेकिन मैं राहुल गांधी जी से चाहूंगा कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पे
स्पष्टीकरण दें, सफाई दें, वो बताएं कि क्या वो मल्लिका अर्जुन के बयान से सहमत हैं या नहीं। All right, Acharya Pramod Krishnan, appreciate you joining us here on Times Now and sharing with us your perspective on the story. We'll see, viewers, how the Congress party, how Rahul Gandhi will really react to the statement that has come in. And this is going to be a top focus ahead as well. For now, heading into